let's get started. And we have attendees who have already joined. So, firstly, good morning, everyone. I'm Shubham, and I have with me Amol sir, who has great experience in teaching, and he is going to guide you today on the topic what after 10th. And specifically, today we are going to explore JEE preparation, that is Joint Entrance Examination, and how you can create a good technical career. How can you build a great technical career? That's what we are going to discuss here today. So we have Amol More sir with us here today from Study Bus, and he is going to guide us all, take us through the journey of understanding how the JEE exam works, what are the different areas that we can focus upon, and how can we excel in a technical career. Amol sir, you want to say something at the start? Yes, definitely. I am supposing the students who will be attending this session will be currently in the 10th standard. So वो अपना 10th standard का preparation कर रहे होंगे. But Yeah. inside their mind there must be some idea कि ये 10th standard का preparation हम कौन सी stream के लिए कर रहे हैं. किसी को आर्ट्स करना होगा, किसी को कॉमर्स करना होगा, किसी को साइंस करना होगा. बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू डू इंजीनियरिंग, वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग करियर इन देयर फ्यूचर, हैव नो आइडिया कि उसके लिए एग्जाम कौन सा देना है, कितना डिफिकल्ट एग्जाम है, उस एग्जाम में कितना स्कोर लाना है, उसका प्रिपरेशन कैसे है, या फिर उसके लिए रिलेटेड कॉलेजेस कौन से है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, कौन सा स्ट्रीम मुझे लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम फिलहाल बूम में है, कौन से स्ट्रीम में मुझे पैशन है. ऐसे अनगिनत सवाल बच्चों के मन में रहते हैं. वो सवालों का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे. सो we'll have all your doubts sorted in this session, so that while studying for 10th standard you have a goal which you are trying to pursue in the next 2.5 years while giving the JEE mains and JEE advanced attempt. Perfect, sir. Perfect. Thank you so much for a very good head start. And everyone, please feel free to like respond in the chat section. We want to ensure that you are able to communicate with us. So the communication method is super simple. On the platform which you are watching this video, you can just type your answers in the chat section, and we will monitor those. We will answer to those queries. In case you have any questions, आपके जो भी सवाल है, आपको जो भी डाउट्स है, वो आप अपने चैट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं. सर और मैं हम उन चैट्स को मॉनिटर कर रहे हैं और हम उन सवालों को आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट सेक्शन में जाए और अपना नाम, आप कहाँ से है और कितने साल के हैं, लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ ओल्ड आर यू, इसका जवाब दे दे. तो मैं चैट सेक्शन में अपना आंसर डाल रहा हूँ, आप भी अपना शेयर कीजिए. सिमिलरली आप भी सब अपना रिस्पॉन्स यहाँ चैट सेक्शन में डाल दीजिए. All right, guys. All right. Thank you for your responses. Okay, got it. So, one important announcement, during this session, we are going to give you a lot of bonuses. बहुत सारे bonuses, बहुत सारे gifts आपके लिए ready है. One of those is a study bus career kit. इस career kit की मदद से आप SSC exams को और कैसे बेहतर तरीके से face कर सकते हैं. How can you crack examinations in a very good streamlined manner? इसके बारे में आपको details मिलेंगे. ये आपको after the session मिलेगा. और साथ ही साथ स्कॉलरशिप. सो स्टडी बज़ ने स्पेशली आपके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स क्यूरेट की है. वो स्कॉलरशिप्स क्या है, उन्हें कैसे आप अवेल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको स्टडी बज़ की तरफ से मिलेंगे. और साथ ही साथ लाइव Q&A विद अमोल सर. तो आपको जो भी डाउट्स है, आपकी जो भी क्वेरीज है, उन्हें सॉल्व करने के लिए अमोल सर लाइव होंगे. सो आप अपने डाउट्स को, आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर पूछ सकते हैं और अमोल सर से उनका सोल्यूशन ले सकते हैं. आगे बढ़ते हैं.
Very first thing, I would like to introduce Amol More sir. So Amol More sir holds a decade of experience. He is into teaching. He is a BTech from VJTI, that is Veer Mata Jizabai Technological Institute, a very popular engineering institute. So he is a alumni of VJTI. Again, he has completed his PG in construction management from NICMAR, and he is a dean of academics at StudyBuzz. And yes, of course, he is also a member of Actual Committee, Actual Institute of India. So sir holds amazing experience and today he is here with us. वो हमारे साथ है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए कि कैसे आप अपने करियर को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, कैसे और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं और एक टेक्निकल करियर विद जेई और सीईटी कैसे बना सकते हैं. अमोल सर, यू वांट टू से समथिंग एट दिस पॉइंट? So, regarding the experience that I'm having or the degrees that I'm having, इसमें आप देख सकते हैं जो डिग्रीज है those are from certain colleges. जैसे बीटेक, जैसे एक बीई होता है एक बीटेक होता है, दोनों में बहुत स्लाइड सा फर्क है पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है. तो वो देखेंगे आप बीजेटीआई से है. पोस्ट ग्रेजुएशन देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, दैट इज फ्रॉम ऑल्सो वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट, दैट इज फ्रॉम निकमान which is in Pune, and then actuarial is from Actuarial Institute of India. So these degrees you can get in any of the colleges, but if you get these degrees from the top notch colleges, that gives you the proper head start at the start of your career. So that's what matters. So get your degrees from a very well known and very reputed colleges. That's what you can see from my academic profile. So that's what matters the most. अभी सामने वो रखा है इसलिए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस एकेडमिक प्रोफाइलिंग में बच्चों को क्या देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इज द नेम ऑफ द कॉलेजेस. Got it, sir. Got it. Thank you for the tip that you should actually have that great academic background, good colleges, so that your profile outshines. एंड इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे सर. मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा कि कैसे आपने अपनी प्रोफाइल को इतना बढ़िया तरह से बिल्ड किया. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेन टॉपिक टुडे. व्हाट आफ्टर क्या, या फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या, व्हाट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स. एंड यहाँ वील डिस्कस योर एसेंशियल गाइड टू जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज जेई प्रिपरेशन एंड सक्सेसफुल करियर पाथवेज. सो अगर आप जेई स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपको करियर में इंजीनियर बनना है या फिर कोई टेक्निकल रोल करना है, तो व्हाट इज द पाथवे फॉर इट, ये हम आज यहाँ पर इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे. सो अमोल सर, ओवर टू यू. ओके, सो 10वीं का एग्जाम देने के बाद आप 11वीं और 12वीं में लेटेस्ट से साइंस लेते हैं. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी वाचिंग दिस सेशन will be interested in obviously JEE mains and JEE advanced का एग्जाम. So they are going to take science stream in 11th and 12th. तो ये साइंस स्ट्रीम लेने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो 11th-12th का बोर्ड का जो भी बोर्ड रहेगा, सीबीएसई रहेगा, आईसीएसई रहेगा, एचएससी रहेगा, जो भी बोर्ड रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों को पता होना कि उनको कौन सा कोर्स परस्यू करना है, उससे उनको कौन सी डिग्री मिलेगी और उसके लिए उनको कौन सा एग्जाम देना है. तो यहाँ पे मैं एनलिस्ट करना चाहूंगा जो डिफरेंट प्रोफेशन है और डिफरेंट कोर्सेस है, उनकी डिग्रीज कौन सी होती है. तो आपको अभी सामने पीपीटी दिख रहा होगा, देखो, या फिर एक स्लाइड दिख रही होगी. सबको दिख रही है स्लाइड? यस. तो इस स्लाइड में देखिए आपको कोर्सेस दिख रहे होंगे जिसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल, फार्मेसी एंड एनडीए, ऐसे 5 डिफरेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेस यहाँ पे एनलिस्ट किए गए हैं जो आप साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं. साइंस स्ट्रीम से और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, बट दीज आर द प्राइम एंड द मेन मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेस अवेलेबल इन इंडिया. तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में ये सेशन देखेंगे, वो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड स्टूडेंट्स रहेंगे. तो मैं वो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. तो इसमें आप देखेंगे 2 डिग्रीज दिख रही है आपको, एक बीई एंड एक बीटेक. तो बीई जो डिग्री है वो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से मिलेगी, जो भी नॉर्मल कॉलेजेस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी है. जो बीटेक डिग्री है वो बीटेक डिग्री आपको ऑटोनॉमस कॉलेजेस से मिलेगी या फिर आईआईटी एनआईटी इन जैसे कॉलेजेस में से मिलेगी.
तो ऑब्वियसली बीटेक एंड बीई में ये बेसिक फर्क आ जाता है कि आपने कौन से कॉलेज से वो डिग्री हासिल की है। Obviously, the exam which you will be giving for engineering is JEE Mains Advanced। अगर आप IIT या फिर NIT से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एंड द अदर एग्जाम विच आई हैव एनलिस्टेड हियर इज MST CET। तो यहाँ पे MST नहीं लिखा है बिकॉज महाराष्ट्र का एक अलग से CET होता है, एंड वैसे हर एक स्टेट का एक अलग अलग CET होता है। तो जैसे मैं जम्मू कश्मीर बोलूँ तो उसका JK CET होता है। सो लेट अस से महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स भी अगर ये देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक एग्जाम रहेगा CET, जो उनके स्टेट लेवल कॉलेजेस में उनको एडमिशन देता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो ये तो हो गया मेनली इंजीनियरिंग का। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देर आर अदर कोर्सेज, जैसे आर्किटेक्चर हो गया। आर्किटेक्चर इज अ वेरी लॉन्ग कोर्स, ये 5 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। इंजीनियरिंग का कोर्स सिर्फ 4 साल का होता है। तो आर्किटेक्चर में आपको नेचुरली BArch की डिग्री मिलती है। इसके लिए आपको JEE मेंस का पेपर 2 देना पड़ता है या फिर नाटा की एग्जाम देनी पड़ती है। तो उसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। So the other professions, as you can see, medical, pharmacy and NDA, those are need specific। मेडिकल एंड फार्मेसी, जिसके लिए आपको वन नेशन वन एग्जाम जो है अपना नीट का एग्जाम वो देना पड़ता है। एंड फार्मेसी के लिए अगर आप स्टेट लेवल में किसी भी कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो MST CET का एग्जाम सफाइस कर जाता है। सो मेजरली अगर JEE की बात करें तो उसके हिसाब से आप ये 2 कोर्सेज कर सकते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आर्किटेक्चर करना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, JEE मेंस एंड JEE एडवांस, अगर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो। सो दैट इज अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैंने मेनली फोकस किया इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड ऑन कि कौन से बच्चे ये सेशन देखने वाले। तो अभी समझते हैं कि हमने फिक्स कर लिया हमें इंजीनियरिंग करना है। तो एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को अभी से क्या पता होना जरूरी है, तो उसको ये पता होना जरूरी है कि मैं कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। एक होते हैं जो आपके घर के आसपास या फिर आपके स्टेट में कॉलेजेस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम IIT एंड NIT कह रहा हूं मैं, जो स्टेट लेवल कॉलेजेस होते हैं। एंड एक होता है नेशनल लेवल कॉलेज, जिसको आप ऐसा कह सकते हो कि NITs एंड IITs। ठीक है, सो स्टेट लेवल किसी भी कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है अपार्ट फ्रॉम IIT एंड NIT, तो आप MST CET का एग्जाम देंगे। और नेशनल लेवल जो आप एग्जाम देंगे JEE मेंस का, इस एग्जाम के थ्रू आप NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। और JEE मेंस देने के बाद आप एक और एग्जाम देते हो जो कि होती है JEE एडवांस। तो JEE एडवांस की एग्जाम देने के लिए आपको JEE मेंस की एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है पहले। मतलब 100 परसेंटाइल में से 93 परसेंटाइल जब आपके आते हैं, या फिर मैं अप्रोक्सीमेटली मार्क्स वाइज आइडिया दे दूं, एकदम शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। JEE मेंस का 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स मिले, 95 out of 300, the exam is very difficult, people don't get these marks that easily। तो 95 प्लस मार्क्स मिले ना तो आप मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाते हो और आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। तो अभी तक हमने क्या देखा कि MST CET के लिए सच कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, वो तो स्टेट लेवल पे आप सभी बच्चे दे सकते हैं। JEE मेंस भी सभी बच्चे दे सकते हैं, बट JEE एडवांस देने के लिए आपको JEE मेंस पहले क्लियर करना पड़ता है। इसको शॉर्ट में देखा जाए तो CET के थ्रू स्टेट लेवल कॉलेज में एडमिशन होगा, एंड JEE मेंस के थ्रू NIT कॉलेजेस में एडमिशन होगा, और JEE एडवांस के थ्रू IITs में एडमिशन होगा। अब स्टेट लेवल कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल कॉलेजेस बताऊंगा आपको, बट हमारा मेन फोकस JEE पे है। तो मैं आपको NITs और IITs के बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो NITs अपने पूरे कंट्री में कितने हैं, तो देर आर मोर देन 43 NITs राइट नाउ इन अवर कंट्री, 43 NITs। और IITs कितने हैं, देर आर 23 IITs इन अवर इंडिया, जो अभी और भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले बहुत कम IITs थे, अभी बढ़ते 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 वो 23 IITs हो गए हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें पूरे
कंट्री लेवल पे 23 IITs एंड 43 NITs, ऐसे मोर देन 60 कॉलेजेस है, अराउंड 70 कॉलेजेस है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के थ्रू, जिनका एक्सपोजर डेफिनेटली स्टेट लेवल कॉलेजेस से बहुत ज्यादा होता है और जो करियर के शुरुआत में आपको एक हेड स्टार्ट देने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमें ये देखना है कि इन एंट्रेंसेस का मार्क्स स्कीम क्या रहता है, कितने मार्क्स पे कौन सा एग्जाम दे सकते हो, या फिर कौन सी एग्जाम देने के बाद कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपके सामने अभी दिख रहा रहेगा, जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम के थ्रू आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, तो वो मैंने पहले बता दिया, बट अभी मैंने सीट मैट्रिक्स बतानी है। तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। एनआईटीज में टोटल सीट्स है अराउंड 24,000। ट्रिपल आईटीज, अब ट्रिपल आईटीज और आईआईटी में कंफ्यूज मत कीजिए। ट्रिपल आईटीज जो है वो दोज आर डिफरेंट फ्रॉम आईआईटीज। ठीक है, ट्रिपल आईटीज में कम सीट्स होती है और जो वो बहुत कम जगह पे है, सो दोज आर अराउंड 8,000 सीट्स जो आप जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, और होते हैं ओसीएफसी एंड जीएफटीआई। अब इसका मतलब बताता हूँ। ओसीएफसी का मतलब अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स और जीएफटीआई का मतलब है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो उसमें भी आपको सीट्स यहाँ पे दिख रहे रहेंगे कि आई डेफिनेटली एनआईटी जितने सीट्स नहीं है, बट यस उसमें भी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सीट्स दिखते हैं। तो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू आप ये 3 प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब जेडब्ल्यू मेंस में आपको 300 में एक डिसेंट स्कोर मिल गया, जो कि डिसेंट स्कोर है 95 प्लस लेटर से ऑन एन एवरेज, तो आप जेडब्ल्यू एडवांस दे सकते हो। तो जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। एंड आईआईटीज जो मैंने बताया थी टोटल 23 आईआईटीज है, उसमें टोटल सीट्स अराउंड 17,500 सीट्स है। अब जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम हर साल 15 लाख बच्चे देते हैं, तो इतनी डिफिकल्ट एग्जाम है, पूरी कंट्री में 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सो नेचुरली 15 के 15 लाख बच्चे क्लियर नहीं करते ना, तो वो 15 लाख में से 12.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते मेंस, मतलब वो एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसका सरल भाषा में अर्थ अगर मैं बताऊं, दैट मीन्स दे गेट लेस देन 100 मार्क्स और लेस देन 90 मार्क्स टू बी वेरी प्रिसाइज। So those 12.5 lakh students cannot give JEE mains advance। तो जो टॉप के 2.5 लाख बच्चे होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा मेन रैंक अप टू 2.2 lakhs। सो अराउंड 2.2 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं, those who get more than 95 plus marks और more than 93 percentile, वो एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस के लिए। फिर एडवांस के एग्जाम देने के बाद AIR लगता है, ऑल इंडिया रैंकिंग, और उसके हिसाब से अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा अच्छा है, लेटर से 4,000 5,000 रैंक है, तो आप टॉप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। नाउ देयर इज वन मोर एग्जाम विच इज सीईटी लेवल एग्जाम, जो आपको स्टेट लेवल कॉलेजेस में एग्जाम देती एडमिशन देती है। या यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली महाराष्ट्र एंड मुंबई लिखा है, देखो। तो हम एमएसटी सीईटी की बात करेंगे। एमएसटी सीईटी हर साल 5 लाख बच्चे देते हैं महाराष्ट्र में। कितने? 5 लाख। अब महाराष्ट्र में सीट्स कितनी है देखो, टोटल 2,37,000 अराउंड सीट्स है, बट प्राइवेट कॉलेजेस इससे भी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सीट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बट इसमें से सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, ये जो स्टेट लेवल सीट्स मैंने लिखी है। या फिर मुंबई में आप देख रहे हो 50,000 सीट्स है, तो आप बोलोगे सर फिर इसमें से सीट्स कौन सी अच्छी है, तो सबसे बेहतर सीट्स कौन सी है, जो आपको लेफ्ट मोस्ट दिख रहे हैं आईआईटी, वो सबसे बेस्ट सीट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? एनआईटी। फिर थर्ड नंबर पे ट्रिपल आईटी और फोर्थ नंबर पे ओसीएफसी एंड जीएफटीआई। स्टेट लेवल में बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जो अच्छे होते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र की ही बात करूं तो उसमें गिन चुन के 5 से 6 कॉलेजेस है जो अच्छे हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। तो स्टेट लेवल में विजेटीआई हो गया, एसपीसी हो गया, डीजे संघवी हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, केजे सोमैया हो गया। ये 5 से 6 कॉलेजेस है जो अच्छे कॉलेजेस है।
अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी कॉलेजेस, बट वो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है मतलब क्या? या तो वहां पे एक्सपोजर नहीं मिलेगा, या तो वहां पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, या तो वहां पे एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, या तो इन कैंपस इंटरव्यूज उतने नहीं होंगे, या तो कंपनीज उनको अप्रोच नहीं करती, या फिर उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है ना, ब्रांड वैल्यू, दैट मैटर्स। तो ब्रांड किसको है? ब्रांड आईआईटी को है। ब्रांड किसको है? ब्रांड एनआईटी को है, ट्रिपल आईटी को है। स्टेट लेवल में भी देर आर गुड कॉलेजेस जिनको ब्रांड है, बट देर आर ओनली 3 to 4 कॉलेजेस जिनको ब्रांड है। तो इसीलिए जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस की एग्जाम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके थ्रू जो एवेन्यूज ओपन होते हैं उनका ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि आप ही सोचिए, आप कोई भी एक छोटी मोटी चीज भी लेने जाते हैं बाजार में, तो आप पहले क्या देखते हैं कि ये कौन से ब्रांड की है। मतलब 2-3 दिन पहले का ही एग्जांपल दूं तो मैं इस्त्री खरीदने गया था। मुझे इस्त्री का उतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने एक नाम सुना था, मॉर्फी रिचर्ड्स, कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैंने सारे ब्रांड साइड में कर दिए एंड मैंने मॉर्फी रिचर्ड्स की इस्त्री देखी। अब वहां पे 15 से 20 ब्रांड्स थे मॉल में इस्त्री के, बट आई वेंट टू दैट काउंटर ओनली। क्यों? सीधा साधा इस्त्री है, बट उसमें भी मैंने पहली चीज क्या सोची? ब्रांड। कि हाँ, ये ब्रांड से अगर मैं एक प्रोडक्ट लूं तो उसमें कमियां कम होंगी, या फिर होंगी ही नहीं। उसका प्रोडक्ट वैल्यू अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा। अब आप सोचिए, एक इंजीनियर की समाज को क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? एक इंजीनियर को बड़ी बड़ी कंपनी रिक्रूट करती है उनसे अपने टेक्निकल काम कराने के लिए। तो एक रिक्रूटर क्या सोचता है, कंपनी क्या सोचती है कि काम कम करते हैं, हम हर जगह नहीं ढूंढते, हम ब्रांडेड कॉलेज में जाते हैं। दैट इज वाई रिक्रूटर्स जाते किधर है, कंपनी जाते किधर है? आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था ब्रांड वैल्यू। एंड दैट इज द रीजन जेडब्ल्यू मेंस के बारे में पता होना, जेडब्ल्यू एडवांस के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वही एग्जाम्स देके हम इन ब्रांडेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर रहेगा बाइफर्केशन, कि कौन सी एग्जाम देने पे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस में क्या एडवांटेज हमें मिलता है, कौन से कॉलेजेस में क्या डिसएडवांटेज है, वो भी मैंने शॉर्ट में बता दिया है। हाउ जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस का एग्जाम सीईटी के एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो सर जी सर, एक हाँ, छोटा सवाल आया है सर मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ये एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो करनी होती है वो कब से शुरू करनी चाहिए? जैसे कि अगर आप जेई मेंस की बात करें तो 11th 12th से ही प्रिपरेशन करनी है या फिर उससे पहले करना जरूरी है? कब करना सही समय है हर एग्जाम के लिए? ओके। सो जी। इसके बारे में मैं थोड़ा इन डेप्थ आंसर देना चाहूंगा। तो जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा, बहुत ही बेहतर सवाल है। जी सर। देखिए, एमएसटी सीईटी का जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन आपको पहले से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसटी सीईटी का पोर्शन ही होता है 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। 12वीं कक्षा का जो भी आपका पोर्शन रहेगा वही रहता है, एंड 11वीं कक्षा का थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है। तो बेसिकली एमएसटी सीईटी की शुरुआत आपकी 12वीं स्टैंडर्ड में जाने के बाद ही प्रिपरेशन की शुरुआत होती है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की, शुरू करने की पहले से जरूरत नहीं है। हाँ, बस आप आपका जो डेली रूटीन है, डेली पढ़ाई है, वो अच्छे से करें तो बेहतर रहेगा। बट जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस, इसके लिए जो प्रिपरेशन लगता है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो 7वीं या 8वीं कक्षा से ही जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो क्या ये राइट टाइम है 7वीं या 8वीं में जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस का प्रिपरेशन शुरू कर देना? तो मेरे हिसाब से तो यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि कॉलेजेस में इतना वैल्यू है, इन कॉलेजेस में, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप प्रिपरेशन 11वीं कक्षा में जाने के बाद शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही साल मिलते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए। इमेजिन करो, एक बच्चा जो 7वीं स्टैंडर्ड से थोड़ा 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 पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा,
आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 10वीं में भी प्रिपेयर करते हैं, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो 8वीं से प्रिपेयर करते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो 8वीं और 9वीं प्रिपेयर करते हैं जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए, और 10वीं में ब्रेक लेते हैं। सो अर्लीएस्ट अगर बताया जाए तो कब से प्रिपरेशन शुरू हो रहा है? 7th स्टैंडर्ड से या फिर 8th स्टैंडर्ड से। करेक्ट। बट अभी यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो अभी तक सोचा भी नहीं था, या फिर हमें तो पता भी नहीं था। दैट्स ट्रू। अभी ये सबको पता नहीं रहता, तो इट इज बेटर लेट देन नेवर। तो अभी 10वीं कक्षा में बच्चों के सामने क्या चैलेंज है कि मुझे अगर जेडब्ल्यू मेंस एडवांस करना है तो, कि मैं 10वीं स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ही इन डेप्थ जाके पढ़ाई करूं, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस का। बाकी सब्जेक्ट एज सच मैटर नहीं करते, स्पेशली जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए, बट मैथ्स एंड साइंस का जो भी आपका पोर्शन रहेगा आपके एचएससी बोर्ड, एसएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएससी बोर्ड में, वो इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है। तो अभी जो बच्चा सवाल पूछ रहा है वो लेटेस्ट से 10th में है, तो मैं बोलूंगा उसका प्रिपरेशन अभी आज से इसी टाइम से शुरू हो गया। बट वो प्रिपरेशन क्या करेगा? अभी 10वीं की एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता। बट यस, उनका जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बच्चे के लिए। बट लेटर से कोई 8वीं 9वीं का बच्चा अगर सुन रहा है तो डेफिनेटली ही और शी कैन स्टार्ट आईआईटी फाउंडेशन कोचिंग्स राइट नाउ, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम इन द नियर फ्यूचर। बट 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए अभी से 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और जैसे ही 10th स्टैंडर्ड खत्म होता है, लास्ट पेपर हो जाता है, 1-2 दिन का गैप लेके इमीडिएटली जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का कोचिंग शुरू करना जरूरी है। आप गैप नहीं ले सकते उसमें कि मैं 1 महीने का वेकेशन लूंगा। उस 1 महीने में 90% बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है उसका 1 लाइन में अगर आंसर देना है तो व्हेन शुड द स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपरेशन? अगर बच्चा अभी 10th में है तो अभी सिर्फ 10th का अच्छे से पढ़ाई करे, और जैसे ही 10th खत्म हो जाता है 1-2 दिन का गैप मैक्स लेके ऑफ जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस इमीडिएटली, बिकॉज ये इतनी डिफिकल्ट एग्जाम है कि ये विदाउट गाइडेंस नहीं हो सकती। मतलब आपके परफेक्ट। पास स्किल रहेगा, स्किल, बट उस स्किल को है ना फाइन करना पड़ता है, वो फाइन गाइडेंस से ही कर सकते हैं। तो आपको जो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का प्रिपरेशन है वो इमीडिएटली आफ्टर 10 स्टार्ट करना है, इमीडिएटली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ब्रीफिंग दिस सो वेल। एक और सवाल जो मुझे आया है वो है कि डज द बोर्ड फ्रॉम विच यू आर स्टडिंग मैटर? यानी कि अगर जेई में जाने वाला एक कैंडिडेट हमारा एसएससी बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से, दूसरा आप ले लीजिए कि वो एक आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड से है, और कोई और किसी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तो क्या इससे फर्क पड़ता है जेई के रिजल्ट्स पर? कैसा है ये सिनेरियो? तो इसका आंसर मैं 2 प्रकार में दूंगा। एक तो फैक्चुअल आंसर दूंगा, जी। और एक थोड़ा अलग आंसर है। तो पहले फैक्चुअल आंसर सुनते हैं। क्या श्योर। फर्क पड़ता है? यस, फर्क पड़ता है। एसएससी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो किनके लिए आसान होता है? सीबीएसई एंड आईसीएससी वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, बट एकदम स्टार्ट के फेज में। बट जैसे जैसे 11वीं स्टैंडर्ड में वो बच्चे 2-3 महीने बिता लेते हैं ना, एसएससी के बच्चे उस पैटर्न में खुद को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एसएससी का स्टडी पैटर्न ही ऐसे बनाया गया है कि बच्चे थियरी ओरिएंटेड थोड़े ज्यादा रहते हैं, और ये जो एग्जाम है जेडब्ल्यू मेंस एडवांस ये पूरी तरह एमसीक्यू ओरिएंटेड है। तो ऐसा नहीं कि एसएससी बच्चों का नॉलेज कम पड़ जाता है, जी। एसएससी बच्चों का प्रिपरेशन कम पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू, बिकॉज वो स्कूल में उतना नहीं किया होता। इसलिए वो एडेड एडवांटेज सीबीएसई और आईसीएसई को मिलती है। सो द आंसर इज यस, बोर्ड मैटर करता है पहले 2 से 3 महीने। अगर वो पहले 2 से 3 महीने बच्चों ने कोप अप कर लिया तो फिर बोर्ड इज इररेलेवेंट आफ्टर दैट। सो परफेक्ट। अभी यहाँ पे मैं एक जो बोला ना कि दूसरा एक जवाब भी दूंगा मैं, ये पहला तो फैक्चुअल जवाब हो गया। जी तो सर। दूसरा जवाब जो है ना वो थोड़ा अलग है कि 11th में कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। 10th तक तो आप एसएससी, आईसीएससी, सीबीएस इन बोर्ड से करते हो, तो 11th में मुझे क्या सेम बोर्ड कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो
तो ऑब्वियसली सीबीएसई बोर्ड ले तो एडवांटेजियस होता है, बिकॉज ये जो जेडब्ल्यू मेंस का पोर्शन है वो सीबीएसई से सिंक्ड है। तो द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर वुड बी कि 11th में सीबीएसई बोर्ड से प्रिपेयर करना ज्यादा आसान पड़ता है, तो सीबीएसई बोर्ड वुड बी द आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट। और सर एक इसी से लिंक्ड सवाल है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, क्या ये सब अलग है या फिर सेम है, कैसा है ये? सो देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जो बुक्स होता है वो एनसीईआरटी होता है, बट ये एनसीईआरटी बुक्स में जो सवाल दिए होते हैं, जो थियरी दिया होता है, वो जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता। आपको सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ाई करना है, मतलब 12वीं कक्षा का पढ़ाई करना है, तो सीबीएसई बोर्ड का जो बुक्स है वो एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है, बट वो बोर्ड्स के लिए है। ओके। मेंस और एडवांस के लिए आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए वो बुक सफाइस नहीं करते। सो सीबीएसई मतलब ही एनसीईआरटी बुक्स, बट यस वो जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए सफाइस नहीं करेगा, दैट्स फॉर श्योर। गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दीज डाउट्स। आई होप जिन्होंने ये सवाल पूछे थे उन्हें इनके जवाब मिल चुके हैं। यस, एंड आगे बढ़ते हैं। सो यस सर। ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू या फिर एमएसटी सीईटी के थ्रू कौन से कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो देखते हैं, कितनी सीट्स है वो देखते हैं। एक बार मैं सारा डेटा आपके सामने रखता हूँ, आप उसको नजर भर के देखिए, फिर मैं वो डिटेल में समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या दिखाया है उसमें, ठीक है। जी। तो अभी देखते हैं इंडिया में कितने कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के। इंडिया में इंजीनियरिंग के मोर देन 5000 कॉलेज है, अराउंड 6000। उसमें सीट से 20 लाख। मैंने क्या बोला, बच्चे कितने जेडब्ल्यू देते हैं? 15 लाख। 15 लाख बच्चे, 20 लाख सीट्स, इसमें कहाँ कंपटीशन है? इसमें तो कंपटीशन ही नहीं है। मतलब आप सोचो, आप एक जगह जॉब लेने जा रहे हो, 100 जगह अवेलेबल है और 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 100 के 100 लोग को जॉब मिल जाएगा क्योंकि 100 ही लोगों ने अप्लाई किया है। बट करेक्ट। दिक्कत तब होगी ना, तो 100 लोग अप्लाई करें और जॉब 50 लोग का ही है। तो यहाँ पे ऐसा सिनारियो देखो हमें दिख नहीं रहा। बट फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अरे फिर भी बहुत सारे बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों नहीं मिलता, या फिर क्यों नहीं लेते? बिकॉज दे डोंट गो फॉर ऑल द सीट्स, दे गो फॉर क्वालिटी सीट्स। तो पूरे इंडिया में भले ही 20 लाख सीट्स होंगी, बट उसमें क्वालिटी सीट्स कौन सी है? आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, ओसीएफसी, ये सारी सीट्स मिला के, एंड ट्रिपल आईटी, ये सारी सीट मिला के अराउंड 60,000 सीट्स होती है, जो आपको दिखेगा देखो इंडिया लेवल पे 57,000 क्वालिटी सीट्स। ये कौन सी है? आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ओसीएफसी, जीएफटीआई, ये जो टॉप कॉलेजेस है। इन शॉर्ट बोलूँ ना, तो आईआईटी एंड एनआईटी, ये सारों का सीट्स मिक्स कर दिया जाए तो जो सीट्स होता है वो क्वालिटी सीट्स होता है। क्वालिटी सीट्स मतलब क्या, कि उस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका करियर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। दैट इज क्वालिटी सीट्स, जिसको ब्रांड वैल्यू है। ओके। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो कॉलेजेस अराउंड 850 है और सीट्स 2,37,000 है। मुंबई में 178 कॉलेजेस है, सीट्स 50,000 है। पुणे में 260 कॉलेजेस है और सीट्स 80,000 है। बट मैंने देखो मुंबई के सामने क्वालिटी सीट्स कितनी लिखी है? 4,000। इसका सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। अपने मुंबई रीजन में 7 से 8 ही कॉलेजेस है जो अच्छे हैं, बाकी सारे कॉलेजेस सो कॉलेजेस है जिनकी सीट्स को क्वालिटी सीट्स नहीं कह सकते। अभी हर कॉलेज में इंजीनियरिंग की 500 सीट्स रहती है ऑन एन एवरेज, तो 8 कॉलेजेस इंटू 500 सीट हो गई 4,000, जो आपको दिख रहा है मुंबई। और पूना को एजुकेशनल हब कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कॉलेजेस अवेलेबल है और एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है वहां पे, सीओईपी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जहाँ पे 500 नहीं, बहुत ज्यादा सीट्स है, अराउंड 1000 के अराउंड सीट्स है वहां पे, इसलिए पुणे में आपको क्वालिटी सीट 6000 दिखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्वालिटी सीट्स कितने हैं? सिर्फ 57,000 इंडिया में,
और मुंबई में 4000 और पुणे में 6000। और आपका कंपटीशन क्या है? तो ये लास्ट ईयर 12.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, दिख रहा है कंपटीशन 12.5 लाख, ऊपर इंडिया के सेल में दिख रहा रहेगा। 12.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 20 लाख सीट है, सबको एडमिशन मिल जाएगा। बट आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि इंजीनियरिंग के सीट्स वेकेंट जा रहे हैं। सर आपने सुना है ये न्यूज? इंजीनियरिंग के सीट्स वेकेंट। जी सर, जी मैंने सुना हुआ है ये कई बार। तो इसका मतलब क्या हम समझते हैं कि या तो बच्चों को 0 मार्क्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। करेक्ट। बट बच्चे इतने भी डम नहीं है ना, बच्चे तो बहुत होशियार है, 0 मार्क्स तो नहीं निकाल रहा कोई, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बच्चे खुद से सोचते हैं कि मुझे एडमिशन ही नहीं ले रहा इंजीनियरिंग में। हम्म। अभी ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इंजीनियरिंग के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो मार्केट में फैला है। व्हाट इज दैट मिथ? कि इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, engineers are underpaid, and engineers do jobs in non-core field। ये 3 चीजें अभी मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये इससे बहुत अच्छी तरह से रिलेट करेगा कि 12.5 लाख बच्चे अपियर कर रहे हैं, टोटल सीट 20 लाख है, फिर भी इतना कंपटीशन क्यों है, इतना हाइप क्यों है जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का? तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं, जो मिथ है कि इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज वो बच्चा इन 57,000 सीट से नहीं है। ये 57,000 सीट्स हटा दो तो 19,43,000 इतनी सीट्स बच रही है, 19.5 लाख टू बी अप्रोक्सीमेट। करेक्ट। ये सीट जो है, इनसे इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब ही नहीं मिल रही, दैट इज अनएम्प्लॉयड। दूसरा अंडर पेड। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप ये 57,000 सीट छोड़ के दूसरे सीट से अगर इंजीनियरिंग करते हो दूसरे कॉलेज से, तो ब्रांड वैल्यू ना होने के कारण आपका स्टार्टिंग पैकेज कम होता है, जिसकी वजह से इंजीनियर्स आर अंडरपेड। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शुरुआत में भी बताई, कि एक कॉलेज कहा जाएगा इंजीनियर्स को, सॉरी एक कंपनी कहा जाएगा इंजीनियर्स को हायर करने, ब्रांडेड कॉलेज में। करेक्ट। तो जो नॉन ब्रांड्स है, वहां से जो इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं, वो इंजीनियरिंग के काम के लिए किए ही नहीं जाते, वो नॉन इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए किए जाते हैं। तो उनका 4 साल का पढ़ाई वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो नॉन टेक्निकल काम करते हैं। तो ये जो मिथ ये है तो सही, बट ये उनके लिए सही है जिन्होंने नॉन ब्रांडेड सीट से इंजीनियरिंग किया है। आप ये क्वालिटी सीट वाले किसी भी बच्चे को जाके पूछो, उसको लगता है क्या इंजीनियरिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट, इंजीनियरिंग इज अंडरपेड, और इंजीनियरिंग इज नॉन टेक्निकल जॉब? वो नहीं बोलेगा, वो टेक्निकल जॉब कर रहा होगा, वो हाईली पेड भी रहेगा। So that is the difference. So that is why these quality seats matter a lot. अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि ये 12.5 लाख बच्चों ने जो अप्लाई किया है, उनमें से 57,000 बच्चों को ही क्वालिटी सीट्स मिलेगा। अब मुंबई पुणे रीजन में कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? तो ऑन एन एवरेज 3 लाख के ऊपर। अभी ये साल 5 लाख तक बच्चे अप्लाई करेंगे, अभी आने वाला साल। जी। तो 5 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, और सीट्स कितनी है? सीट्स सिर्फ 50,000 है, मुंबई की बात अगर मैं करूँ तो इस तरीके से कंपटीशन तो है, बट नॉट फॉर इंजीनियरिंग सीट्स, बट फॉर आईआईटी एंड एनआईटी सीट्स, या फिर गुड कॉलेज वाला क्वालिटी सीट, उसके लिए कंपटीशन है। बिकॉज बाकी फिर इंजीनियरिंग ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, कुछ और चीज कर लेते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि आईआईटी एनआईटी इन कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। उस इग्नोरेंस की वजह से वो कंपटीशन बढ़ जाता है। गॉट इट। ओके, बढ़ते हैं आगे सर, यस, सक्सेस रेशियो पर थोड़ी बात हो जाए। ओके। तो देखिए, कोई भी चीज करने से पहले हम क्या सोचते हैं, क्या इस चीज में मैं सक्सेसफुल होऊंगा? सिंपल। जी। तो सक्सेस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं जेडब्ल्यू की एग्जाम दे रहा हूं तो लेट्स से कि एक काम करते हैं, आपके सामने सक्सेस रेशियो देखो, मैं दिखा रहा हूँ जेडब्ल्यू का कितना दिख रहा है, 4.62%। मैं बताता हूँ निकाला कैसे। सिंपल लॉजिक है,
क्वालिटी सीट्स कितनी है 57,000, कंपटीशन कितना है 12.5 लाख। तो क्वालिटी सीट्स को डिवाइड किया कंपटीशन से इंटू 100 किया तो 4.62%। मैथ साइड में रखते हैं फिलहाल, इतना समझते हैं कि 100 बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं जेडब्ल्यू एडवांस, जी। उसमें से सिर्फ 4 बच्चों को एडमिशन मिल रहा है आईआईटी में, 100 में से 4। बच्चों को मिल रहा है। अभी सीट तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो ये मुश्किल एग्जाम है इसलिए मुश्किल होगा, तो चलो सीईटी का ही देख लेते हैं ना सक्सेस रेशियो। सीईटी का सक्सेस रेशियो क्या आएगा, क्वालिटी सीट्स कितनी है सिर्फ 10,000, मुंबई के 4, पुणे की 6, 10,000। कंपटीशन कितना है अराउंड मोर देन 3 lakhs, तो इसका सक्सेस रेशियो निकाला तो और भी कम आ गया 3%। आप बोलेंगे सर ये कुछ तो गड़बड़ है, सीईटी तो इजी एग्जाम है, मेरे सीनियर्स ने बताया है इजी है, आजू बाजू वालों ने बताया इजी है, घर वालों ने बताया इजी है, बट आप तो बता रहे हो कि जेडब्ल्यू का सक्सेस रेशियो सीईटी से ज्यादा है और सीईटी का सक्सेस रेशियो कम है। इसका रीजन मैं बताता हूँ, जेडब्ल्यू के थ्रू आप थ्रू आउट इंडिया में जाते हो, जहाँ पे अराउंड 70 गुड कॉलेजेस है, आईआईटीज एंड एनआईटीज। बट आप जब सीईटी देते हो तो आप आपके लोकेलिटी में या फिर आपके स्टेट के अंदर जो 4-6 अच्छे कॉलेजेस है उनके लिए compete करते हो, जिसके लिए लोग ऑल ओवर इंडिया से भी कभी कभी compete करते हैं जेडब्ल्यू मेंस के सीट के थ्रू। सीईटी को वो भी कंपटीशन होता है, जेडब्ल्यू मेंस के सीट के थ्रू भी एडमिशन मिलता है कभी कभी। सो दैट इज वाई क्वालिटी सीट मिलना सीईटी के थ्रू स्टेट लेवल पे मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक तो हम कंक्लूजन ऐसा बना सकते हैं कि सीईटी के एग्जाम भले ही इजी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है गुड क्वालिटी सीट्स के लिए, जेडब्ल्यू की एग्जाम भी डिफिकल्ट है और उसका सिलेक्शन भी डिफिकल्ट है और उसका सक्सेस रेशियो भी वैसे डिफिकल्ट ही है, बट सीईटी से तो अच्छा ही है। और जो बच्चे जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली सीईटी के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जो जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा करते हैं वो ऑटोमेटिकली सीईटी अच्छा करते हैं, तो उनके दोनों साइड से कॉलेजेस बैकअप में रेडी रहते हैं। सो दैट इज व्हाई जेडब्ल्यू मेंस बिकम्स मोस्ट एलिजिबल एग्जाम टू गिव यू एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग। गॉट इट। तो ये बताने की जरूरत क्या है वो भी बताता हूँ, क्योंकि स्टेट लेवल पे जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के बारे में उतना पता नहीं होता ना, सीईटी ही पता होता है। सो दैट इज व्हाई ये सक्सेस रेशियो कंपेयर करना बहुत जरूरी है। गॉट इट सर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी बच्चों के मन में नेचुरली क्या सवाल आया रहेगा कि ये एग्जाम कैसे रहती है। तो ये जो एग्जाम है ये स्कूल जैसी नहीं होती थियोरी वाली कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखा। मैं आपको सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हाँ सर। कि आप 10वीं का पेपर दे रहे हो लेटेस्ट से, जी। आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आया है, उसका आंसर लिखना है, तो आप कितना पेज आंसर लिखोगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है सर, अगर ऐसे जैसा कुछ आंसर लिखना है उसे तो सॉरी, 1 या 2 पेज तक का आंसर मैं कोशिश करूंगा लिखने की। हाँ लेटेस्ट से आपको उतने अच्छी तरह से वो आंसर नहीं आ रहा था, जी। फिर भी आपने एक पेज लिखा, एक्सटेंड कर दिया। आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे कि ये मिलेंगे मुझे। मिनिमम 3। मिनिमम 3, चलो एकदम ही खराब था, एकदम ही खराब, कितने एक्सपेक्ट करोगे। फिर भी 2 मार्क्स, 1.5 या 2 मार्क्स 2 मार्क्स, मिल जाने चाहिए जी। राइट। मतलब आपका प्रिपरेशन उस क्वेश्चन का उतना अच्छा नहीं था, नहीं था। फिर भी यू रोट समथिंग which करेक्ट। was related to it, you gave a particular length to the answer and हाँ। still you got 50% marks, 4 में 2। करेक्ट सर। इसका मतलब इधर अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चन के लिए पनिशमेंट नहीं होता, हाँ। उल्टा रिवॉर्ड होता है कि ले लो आधे मार्क्स तो ले लो। करेक्ट। बट जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम जो है वो पनिशमेंट वाली एग्जाम है, हम्म। देयर इज नो रिवॉर्ड। जी। रिवॉर्ड क्या है, एग्जाम क्लियर करने के बाद एनआईटी आईआईटी में एडमिशन, दैट इज द ओनली रिवॉर्ड। बट गॉट इट। एग्जाम का पैटर्न बड़ा अलग है, लेट मी टेल यू द पैटर्न। श्योर सर। यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स, जी। एंड उससे रिलेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ओके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा, देखो 11th में और 12th में ये पूरा मिला के जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उन चैप्टर्स पे एग्जाम होंगी।
मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, 10वीं के पूरे एक साल में जितने भी चैप्टर्स थे उनके ऊपर एक साथ पहली बार एग्जाम देने वाले हो, ऐसा आपके साथ पहली बार हो रहा है। अभी करेक्ट। तक आप सेमेस्टर पैटर्न में चल रहे थे, 6 महीने का आधा पोर्शन। हाँ। अभी आप पूरे पोर्शन में आ गए ना 10वीं के। जी। इससे बड़ी बैटल जेडब्ल्यू है। हम्म। वो आपको लेके जाता है 2 साल के पोर्शन में, और मैं चैप्टर्स भी बताता हूँ कितने होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 91 चैप्टर्स होते हैं, बराबर। हम्म। अब 91 चैप्टर्स 11वीं 12वीं 2 साल में आप पढ़ोगे, पेपर कैसे रहेगा? पेपर बड़ा सिंपल है, 25 एमसीक्यू रहेंगे उसमें। उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, 20 एमसीक्यू होते हैं और 5 न्यूमेरिकल होते हैं। एमसीक्यू मतलब ए बी सी डी कोई एक करेक्ट रहेगा, एंड करेक्ट। न्यूमेरिकल मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, आपको नंबर आंसर लिखना पड़ेगा, 3.1 4 5 6 ऐसा कुछ। तो ऐसे 25 एमसीक्यू होते हैं। केमिस्ट्री में भी 25, मैथ्स में भी 25, टोटल 75 एमसीक्यू होते हैं, जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन राइट आया तो 4 मार्क्स, और रॉन्ग आया या फिर थोड़ा बहुत गलत हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत होता ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव है ही नहीं। जो आप पेपर पे सॉल्व करोगे ना, वो पेपर जाएगा रद्दी में। आप वहां पे सिर्फ आंसर टिक करके आओगे, ए बी सी या फिर डी। अब देखो, एग्जाम में आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया 10th की, और मस्त उसका फॉर्मूला लिखा, गिवन वगैरह लिखा, सॉल्व किया, और फाइनल आंसर गलत हो गया, तो आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो? कितना करेंगे? कितने? आपकी नसीब बता रही है कि 4 में से 2.5 तो मिल जाएंगे सर, या फिर 3 तो मिल जाएंगे, नहीं क्योंकि नहीं। मेरा तो फाइनल आंसर गलत गया है ना सर। हाँ। बट इस एग्जाम में ओनली फाइनल आंसर को महत्व है, बाकी किसी चीज को इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो गॉट फाइनल इट। आंसर राइट है तो ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड वर्क है, जो आप मेहनत करोगे, वो कोई देखेगा ही नहीं। करेक्ट। सो दैट इज वाई वो स्ट्रेट अवे -1 देता है। गॉट इट। इसलिए ये एग्जाम डिफिकल्ट है। तो 300 मार्क्स का एग्जाम है, हर क्वेश्चन राइट आया तो +4, बट रॉन्ग गया तो -1। दैट इज द पेपर पैटर्न ऑफ जेडब्ल्यू मेन्स। गॉट इट। तो सर यहाँ पर तो इन केस समझिए मैं पेपर के लिए चला गया और मैंने रैंडमली अगर कोई भी आंसर्स मार्क कर दिए तो मेरा स्कोर माइनस में भी जा सकता है, सही है? यस, इसका भी मैं एक स्कोर बता देता हूँ आपको। लेटर से कोई भी आंसर राइट आने का आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो बताता हूँ मैं। जी। 4 ऑप्शन है, 1:4, पॉइंट वन इज ट्वेंटी टू फोर करेक्ट। मतलब क्या? आपका 25% चांस है। करेक्ट। लेटर से आप बिल्कुल भी पढ़ाई करके नहीं गए और आपने 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। गॉट इट। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके कितने राइट आएंगे? 25%। 25%। तो 75 का 25% निकाल लेते हैं, तो 75 क्वेश्चंस का 25% मतलब कितना? 7.5, 7.5 और 3.75। तो 7.5 को 8 कर देते हैं, 7.5 को 8, या फिर 15 कर देते हैं, 18 क्वेश्चन राइट आएंगे, जी। 18 से 19। अब मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स मिलेंगे। 75 में से आपके 19 क्वेश्चन राइट आए। यस। चलो, मैं लक फैक्टर दे देता हूँ, और एक क्वेश्चन राइट आ गया, 20। 20 राइट आए और 55 रॉन्ग गए। हाँ। तो 20 राइट के 20 × 4 80 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। करेक्ट। पर जो 55 रॉन्ग गए उसका -55 हो जाएगा। करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं एक छोटा चीज है वो भी बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल को नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। तो गॉट। ऐसे न्यूमेरिकल 5 5 5 15 रहते हैं, बट उतना डिटेल में अभी 10वीं के बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ठीक। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ। तो 20 × 4 80, और -55 हो जाएगा 55 क्वेश्चन का। 80 -55 कितना हो गया? 25। मतलब आपका 300 में 25 स्कोर आएगा। गॉट इट। एंड दैट इज ऑल्सो इफ यू आर वेरी लकी, हम्म। मतलब वो 25 से नीचे ही जाएगा। सो ये एमसीक्यू एग्जाम है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ये तुक्के वाली एग्जाम है। हम्म। तो वहां पे बच्चों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो दैट बिकम्स अ की फैक्टर in deciding who can clear the JEE mains exam and go for JEE advance. गॉट इट सर। और एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये जो टाइम लिमिट होता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, लाइक अब जब आप कहते हो 75 क्वेश्चंस है हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं जेई में, तो कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है एग्जाम के लिए और कितने ड्यूरेशन में ये एग्जाम देना होता है? 80। पहली चीज, पहले ये एग्जाम ऑफलाइन होता था, अभी पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। सो दैट इज वन थिंग।
विच इज नोट वर्दी। आपके सामने 75 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। जी अब 75 क्वेश्चन और 180 मिनट्स, इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट नहीं मिलने वाले। जी 2 मिनट भी हर क्वेश्चन के लिए दिए तो 150 मिनट्स होते हैं, हाँ और 3 मिनट दिए तो 210 क्रॉस कर जाता है, 225, मतलब आपको हार्डली 2.5 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। गॉट इट। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया इज हर क्वेश्चन आपका 2 से 2.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जो देखते ही आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, सो देर आर सम क्वेश्चंस लाइक दैट, बट उनका नंबर ज्यादा नहीं है। तो 75 में वो क्वेश्चन कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6, उससे ओके। ज्यादा नहीं। मतलब हर क्वेश्चन को आपको टाइम तो देना ही है। ऑब्वियसली देर विल बी सम क्वेश्चन जो आपके एक आध मिनट के अंदर भी हो जाएंगे, तो वो टाइम बैलेंस हो जाता है। बट हियर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अगेन टू बी नोटेड कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का डिफिकल्टी अलग होता है। ओके। मैथ्स जो होता है वो बच्चे 2 साल पढ़ के उनको आता सब है, बट मैथ्स का पेपर लेंदी होता है। मैथ्स का पेपर बच्चे 1 घंटे में नहीं सॉल्व कर पाते। ऑब्वियसली ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस 1 घंटे में मैथ्स करना है, वो तो पूरे 3 घंटे में आप कैसे भी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट यू विल ट्राई टू बैलेंस द स्कोर इन PCM ओवरऑल ना, ताकि फाइनल स्कोर अच्छा आए। जी मैथ्स में 100 निकाल लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री में 10-10 निकाले तो 120 ही होगा, उसका कुछ फायदा ही नहीं। तो इसका मतलब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते वक्त बच्चों को ये देखना होता है कि मैथ्स का एग्जाम लेंदी होता है हर साल का। तो मैथ्स की एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम देना होता है। केमिस्ट्री का एग्जाम काइंड ऑफ फैक्चुअल होता है, रिमेम्बर करना पड़ता है डेटा, तो उसमें ज्यादा सॉल्विंग नहीं होता, तो उसको थोड़ा टाइम कम लगता है, 1 घंटे से कम। और फिजिक्स का मॉडरेट है, क्योंकि फिजिक्स में मेंस में उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता, बट सॉल्विंग तो रहता है। तो फिजिक्स को कभी कभार एक आध घंटे के आसपास टाइम लग जाता है, केमिस्ट्री को 1 घंटे से कम लग जाता है, और मैथ्स को 1 घंटे से ज्यादा। अब ये मैंने एवरेज आइडिया बनाया है, ये हर बच्चे के लिए लागू होगा क्या? नहीं, देयर माइट बी सम एक्सेप्शनल किड्स जिनका केमिस्ट्री वीक है, उनको केमिस्ट्री में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा है, वो 1 घंटे से कम टाइम में कर लेंगे। बट जो एवरेज आइडिया है कि मैथ्स विल बी लेंदी, केमिस्ट्री विल बी फैक्चुअल, रिमेम्बरिंग पे, मेमोरी पावर पे हेंस कम टाइम लेगा 1 घंटे से, फिजिक्स विल बी मॉडरेट अराउंड 1 आवर। तो इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना होता है पेपर में। और आप रैंडम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आपको सेक्शन वाइज थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है कि इस सेक्शन में मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के, बिकॉज हर एक में अलग अलग परसेंटाइल आता है। फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, मैथ्स का अलग से। एंड वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका रैंक डिसाइड होने में। तो वो तो बात की बात है, बट स्टिल दैट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब स्कोर्स के बीच में टाई हो जाता है ना, तो वो फिर वो डिसाइड करने के लिए PCM का वो परसेंटाइल वगैरह वो एल्गोरिदम मैटर करता है, इसलिए बैलेंस स्कोर होना बहुत जरूरी है। या यही सर, आपने जो अभी पॉइंट एक रेस किया, इसी से मुझे आपसे पूछना है कि क्या कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है जेई के लिए, या फिर पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम इतना स्कोर लाना जरूरी है सो दैट यू क्वालिफाई फॉर परसेंटाइल? तो ये कैसे चलता है सर? ओके, सो अभी JEE मेंस का मैं बताना चाहूंगा। सो JEE मेंस का सिंपल लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। टोटल बच्चे जितने भी हो, वो तो मार्क्स देते नहीं है, हम्म। वो क्या देते हैं? परसेंटाइल। तो जी अगर 15 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तो वो एक परसेंटाइल देंगे कि 93 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपको मार्क्स है तो आप क्वालिफाई कर गए, तो आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। इस 93 परसेंटाइल मतलब 93 परसेंटेज नहीं। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 93 परसेंटाइल क्या होता है। और लेटर से आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, और आपको एक एग्जाम में 100 में से 70 मार्क्स मिला, तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? 70। 70। बट अभी यहाँ पे एक कैच है। लेटर से आपकी क्लास में सिर्फ 7 बच्चों को 70 या 70 से ऊपर मार्क्स है, तो आपके पीछे कितने बच्चे होंगे? 93, बिकॉज आप 70 पे हो, आपके आगे 6 बच्चे हैं।
ठीक है, तो आप 7वें बच्चे हो गए और आपके पीछे कितने बच्चे हैं जिनको 70 से कम है? 93। तो आपका परसेंटेज 70 था बट आपका परसेंटाइल आ जाएगा 93। मतलब क्या? आपके पीछे 93% बच्चे हैं क्लास के। सो परसेंटेज 70, परसेंटाइल 93। सो परसेंटाइल और परसेंटेज एज सच कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब 300 में कितने मार्क्स मुझे लगेंगे कि मैं क्लियर हो जाऊं, वो बताना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होता, बट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको दिया जा सकता है कि आप 93 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल क्रॉस करते हो तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मतलब 300 में कितना मार्क्स? दैट्स इट। 300 में कितना मार्क्स रहेगा? लेट्स कैलकुलेट सिंपली। 300 में आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाए तो मोर देन 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो मेरा फ्रेंड फॉर्म भर रहा है, मेरे चाचा ने बताया, मेरी मम्मी ने बताया, मेरे पापा इंजीनियर है, या फिर सारे दोस्तों का ग्रुप ने ये किया, या फिर ट्रेंड चल रहा है इसलिए फॉर्म भरते हैं। तो वो डेडिकेटेड बच्चे नहीं होते जो जेडब्ल्यू मेंस के एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मोर देन 90% बच्चे 100 के नीचे ही होते हैं या फिर 90 के नीचे ही होते हैं। तो आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करने के लिए? 300 में 100 के ऊपर, दैट्स इट। तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट वाइज कुछ कट ऑफ की जरूरत है क्या? तो नहीं, जेडब्ल्यू मेंस के लिए वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ओवरऑल 300 में 100 के ऊपर आ गया तो आप कंफर्म एडवांस दे सकते हो। ठीक है, एक्चुअली 100 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि मुझे एकदम सेफ स्कोर बोलना था। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर के 2 साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो वो स्कोर था 93 94 कुछ 300 में। तो जी। सेफ स्कोर क्या रहेगा? 300 में 100 के ऊपर, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सब्जेक्ट वाइज कुछ स्पेसिफिक कट ऑफ रहता है क्या? नहीं, ये कट ऑफ एडवांस में रहता है। तो जेडब्ल्यू एडवांस की एग्जाम काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसका पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। बट इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो वहाँ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है। मतलब आप फिजिक्स में भी पास होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी पास होने चाहिए, मैथ्स में भी पास होने चाहिए और ओवरऑल पीसीएम में भी पास होने चाहिए। इन शॉर्ट में इतना अभी बता सकता हूँ जो बच्चों को समझ पाए। एडवांस के एग्जाम में सेपरेट पासिंग होता है सब्जेक्ट वाइज, मेंस में इट इज टोटली नॉट रिक्वायर्ड। और सर यही एक और सवाल है कि जेई मेंस में हमें कितने पेपर देने होते हैं, एडवांस में कितने पेपर देने होते हैं? ओके, सो अब देखिए, जेडब्ल्यू मेंस टोटल 15 लाख बच्चे देते हैं। अब जी। 15 लाख बच्चे दे रहे हैं तो इन सबको एक साथ एक ही दिन ऑफलाइन एग्जाम देना पॉसिबल नहीं था। देयर करेक्ट। आर मेनी इश्यूज विद दैट, तो इसलिए ये एग्जाम ऑनलाइन कर दी गई। फिर ये तो हो गया बोलते हैं ना, ये मोड का इशू सॉल्व हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया। बट जी। उसके बाद भी एक इशू है, इंफ्रा का इशू। तो करते क्या है, इनको सेशंस में डिवाइड करते हैं। तो लेटर से जेडब्ल्यू का अटेम्प्ट होता है जनवरी में, तो 15 लाख बच्चों को 6-7 सेशंस में बांट दिया जाता है। तो 2.5 लाख बच्चे आज सुबह पेपर देंगे, 2.5 लाख बच्चे शाम को, 2 लाख बच्चे कल सुबह, 2 लाख बच्चे कल शाम को, ऐसे 6-7 सेशन में पेपर बांटा रहता है। आपको कोई एक सेशन आ जाएगा, उसका एग्जाम आपको देना है। अब यहाँ पे इमीडिएट सवाल जो आपके मन में आया रहेगा, सर हर एक का पेपर तो अलग रहेगा ना सेशन वाइज। सो दैट इज वाई यहाँ पे परसेंटाइल वर्क करता है। इजी पेपर का परसेंटाइल बहुत ज्यादा होता है और डिफिकल्ट पेपर का कम हो जाता है। मार्क्स का रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ, मतलब इजी पेपर रहेगा तो 90 मार्क्स को अच्छा परसेंटाइल मिलता है और 70 मार्क्स को उतना अच्छा नहीं मिलता। बट हम्म। अगर डिफिकल्ट पेपर रहेगा तो 70 मार्क्स को भी बहुत अच्छा परसेंटाइल मिल जाता है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको देना एक पेपर है जनवरी में। अब ये एग्जाम इतनी भी आसान नहीं है, ये बच्चों का पेशेंस, पेरेंट्स का पेशेंस, टीचर का पेशेंस टेस्ट करती है। सो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एग्जाम में केबीसी की तरह डबल डिप दिया है। तो ये एग्जाम आप 2 बार एक ही साल में दे सकते हो, मतलब जनवरी में एक बार और अप्रैल में एक बार। तो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम आप 2 बार दे सकते हो एक ही साल में, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। आप बोलोगे फिर कौन सा स्कोर कंसिडर होगा जो बेटर रहेगा? जनवरी का बेटर है तो वो, अप्रैल का बेटर है तो वो। तो ये तो हो गई मेंस की बात।
फिर आते हैं एडवांस के बारे में। एडवांस में कोई डबल डिप नहीं है, एक साल में एक ही बार होता है, बट एडवांस का पेपर भी 6 घंटे का होता है। मतलब 3 घंटे का पेपर 1, 3 घंटे का पेपर 2, वो एक ही दिन में होता है। अ, जैसे मैंने ये बताया ना आपको जेडब्ल्यू का 9 से 12 और 2 से 5, इनमें से कोई एक सेशन आ जाएगा आपको और वो एक पेपर देना है। बट एडवांस का पेपर कैसा होता है, 6 घंटे का। तो लेट अस से आप 9:30 से 12:30 एक पेपर दे रहे हो और फिर 2 से 5 पेपर 2 दे रहे हो, ऐसा होता है। तो मेंस का पेपर आप 2 बार दे सकते हो एक ही साल में, और मेंस क्लियर होने के बाद उसमें से बेटर स्कोर लेने के बाद एडवांस का पेपर आप एक ही बार दे सकते हो, दैट इज इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। गॉट इट सर। और इसी से लिंक्ड एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि एक कैंडिडेट कितनी बार जेई मेंस का पेपर दे सकता है? हाँ, एज सच उसमें ये नहीं है कोई भी, जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट्स का लिमिट है ना, एज जी सच मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है, बट एक बच्चा कितनी बार ही देगा। आई हैव सीन किड्स जिन्होंने 3-4 बार भी रिपीट किया है। जी नहीं तो जनरली देखिए, एक साल में जेडब्ल्यू मेंस का पेपर आप 2 बार दे सकते हो। जी। अगले साल आप जब रिपीट करोगे तो और 2 साल, 2 बार। 2 बार। फिर उसके अगले साल भी अगर आप रिपीट करते हो तो और 2 बार, तो यही सफिशिएंट हो जाता है। मतलब ये सवाल ऐसा है कि यूपीएससी का जो अटेम्प्ट होता है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हाँ कि उनको देखना पड़ता है कि वो एक ही बार में तो क्लियर नहीं होने वाला। दे हैव टू सी कि वो फाइनल्स में रैंक आए, उसके बाद जॉब लगे वगैरह वगैरह। तो जेडब्ल्यू मेंस के लिए वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, मैं बताता हूँ कि एक साल में एक पेपर आप वो 2 बार देने वाले हो, फिर एडवांस का पेपर अगर क्लियर हो गया तो एक बार। तो एक साल में आपको डबल डिप एनीवेज मिल रहा है, डबल डाइव करने मिल रहा है। दूसरे साल, तीसरे साल आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 4-4, 5-5 साल तक दिया है जी एग्जाम। सो एज सच कुछ लिमिट नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। बट द मेजर रिक्वायरमेंट इज कि मतलब जेडब्ल्यू के लिए स्पेसिफिकली मेरा खुद का, मतलब इट विल बी लाइक कि सर सीधा सीधा बता दो ना कि 5 बार दे सकते हैं या 6 बार दे सकते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये चेक करने की जरूरत ही कभी नहीं लगती, क्योंकि बच्चा एक ही बार रिपीट करता है एंड देन बच्चा क्लियर हो जाता है कि हाँ अभी ये मार्क्स आए, इससे एडमिशन ले लेते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि उसके लिए उतना नंबर ऑफ इयर्स डालने की, मतलब अगर किसी का हो ही नहीं रहा तो जरूरत है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक मैंने खुद ने कभी चेक नहीं किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, जी सर। बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 या 4 बार भी दिया है अटेम्प्ट। तो ठीक। दैट इज द मिनिमम यू कैन से। गॉट इट सर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड एवरीवन कि हम आप सभी के लिए एक स्टडी बस करियर किट डिजाइन कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू गिफ्ट इट टू यू आफ्टर द सेशन। साथ ही साथ वी हैव स्कॉलरशिप्स फॉर यू, और वो स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू कम टू आवर सेंटर, ऑफलाइन सेंटर इन थाने, नवी मुंबई एंड कल्याण। जो डिटेल्स है मैं आपको आपके साथ कुछ समय में शेयर करूंगा। तो आपको मंडे यानी आज से लेकर संडे से लेकर थर्सडे तक, ये जो 4 दिन है आगे के, इनमें कभी भी हमारे सेंटर को विजिट करना है और ये ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। इसके बाद आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगा, करियर मैपिंग मिलेगी, तो काफी सारी चीजें आपके लिए रेडी है। आपको बस करना है क्या, आपको सिंपली ये एमसीक्यू टेस्ट के लिए आपके लिए जो भी फिजिबल लोकेशन है उसे सिलेक्ट करना है, वहां ऑफलाइन सेंटर में आना है और अपने लिए एक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, स्कॉलरशिप को अवेल करना है। एंड साथ ही साथ स्टे ट्यून, अंत में हमारे साथ अमोल सर है, तो वो हमें हेल्प करेंगे और ज्यादा सवालों को डिकोड करने में। आपके अगर कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, प्लीज पुट इट इन द चैट सेक्शन, आई विल आस्क इट लाइव टू अमोल सर राइट अवे। थैंक यू सो मच एंड आगे बढ़ते हैं। यस सर। सो अभी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, जो मैंने बोला था ना 6 बार, हाँ दैट सर। इज करेक्ट। ओके। मैक्सिमम 6 टाइम्स यू कैन गिव द अटेम्प्ट। गॉट इट सर। ओके, सो ये प्रॉमिस लैंड में मैंने क्या बताया वो बताता हूँ कि यहाँ पे ना मार्क्स का स्लैब है। देखो, अगर मैं परसेंटाइल अगर समझाने जाऊँ अभी, तो वो तो समझने नहीं वाला। हालांकि मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि 70% कैसे 93% हो सकते हैं, बट हमारा माइंड परसेंटाइल नहीं समझता, हमारा माइंड मार्क्स समझता है। तो मैं मार्क्स के हिसाब से है ना स्लैब बना रहा हूँ। लेटर से आप 300 मार्क्स का जेडब्ल्यू मेंस का पेपर देते हो और आपको 0 से 50 के बीच में कुछ मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो
आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला, या फिर मिलेगा तो भी वो वर्थलेस रहेगा, मतलब उसको रिकॉग्निशन ही नहीं, बिकॉज उसका कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि आपके आगे सारे बच्चे हैं, आपके पीछे बहुत कम बच्चे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने, 18 से 20 लाख तो कंपटीशन ही हो जाता है। 20 लाख बच्चे, इतने बच्चे ओवरऑल अगर अपीयर कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे आपसे आगे, अगर 0 से 50 है तो 0 से 50 है तो नो रिकॉग्निशन। आपको कहीं पे भी इंजीनियरिंग में, अच्छे कॉलेज में तो छोड़िए, नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट अस सी 50 से 100 अगर आपको मिलता है तो क्या। अब देखिए जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम, जैसे मैं बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, 50 से 100 के बीच में मार्क्स निकालना भी डिफिकल्ट है। तो जो 100 के आसपास बच्चे रहते हैं उनको आराम से एडमिशन मिल जाता है, या फिर ये जेडब्ल्यू मेंस के प्रिपरेशन की वजह से पीटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो, तो इनको लोअर स्टेट लेवल कॉलेजेस मिल जाते हैं। मतलब क्या, जो मैंने बोला ना कि जो ब्रांडेड कॉलेज नहीं होते, जिनका ब्रांड वैल्यू बना नहीं होता, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। तो ओनली फैक्ट इज कि वहां पे प्लेसमेंट उतना अच्छे से नहीं होता। नाउ लेट अस से आप 100 से लेके 150 में स्कोर करते हो, इसका मतलब आपका जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर अच्छा है, आपने 90 परसेंटाइल क्रॉस कर लिया है, आपके पीछे 90% लोग हैं, तो आपको बहुत अच्छे स्टेट लेवल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अब आप बोलेगे सर स्टेट लेवल कॉलेज में कैसे एडमिशन मिल जाता है, ये तो जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम है। तो स्टेट लेवल कॉलेजेस में सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, बट उसमें कोटा रहता है जेडब्ल्यू मेंस का। तो उस कोटे के थ्रू आपको अच्छे स्टेट लेवल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अगर आपका स्कोर 100 से 150 के बीच में है तो। अब आप बोलोगे इसमें कंपटीशन कितना है, तो 2.5 लाख। यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने 2,20,000, क्योंकि ये जो 100 से 150 के बीच में बच्चे होते हैं ना, ये जेडब्ल्यू मेंस क्लियर कर जाते हैं। जो मैं बार बार बोला था ना, 100 के आगे मार्क्स, 100 के आगे मार्क्स, तो ये जेडब्ल्यू मेंस क्लियर कर गए, वो एडवांस का एग्जाम देंगे, और वो सीईटी के थ्रू या जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू अपर स्टेट लेवल कॉलेजेस में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू 150 टू 200। अब 150 टू 200 में क्या होता है, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। अगर आपको लोअर एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेना है, बड़े आसानी से हो जाता है। 150 से 200 के बीच में स्कोर है तो आपके आगे सिर्फ 50,000 से 1 लाख के बीच में बच्चे रहते हैं, तो आपका लोअर एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में आराम से एडमिशन हो जाता है। बट यस, 150 से 200 निकालने के लिए 2 साल अच्छी तरह गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि हमें लगता है ना कि अरे बोर्ड्स में 300 में 200 निकालना, 150 निकालना क्या ही मुश्किल है। बट वहां पे 4 मार्क का आंसर निकाल लिखने के बाद 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे 4 मार्क्स का आंसर लिखने के बाद कभी 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। एडवांस में मिलते हैं, हालांकि पार्शियल मार्किंग रहता है, बट वो सारे क्वेश्चन में नहीं रहता, 2-3 क्वेश्चन में रहता है। बट उसका मार्किंग स्कीम अलग है, उसमें नेगेटिव मार्किंग 2 हो जाता है, तो वो अभी डिस्कस ना करें तो ही बेटर है। तो मोटा मोटी अगर बोले तो जेडब्ल्यू मेंस में 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो या तो आपको 4 मिलेगा या तो -1। आपका लॉस 1 मार्क का नहीं है, आपका राइट। लॉस 5 मार्क जो मैटर करता है यहाँ पे। तो जी। इसलिए 150 to 200 निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बट यस, उससे आपको अच्छे एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। नाउ लेट से आप 200 से 250 के बीच में लाते हो स्कोर, तो आपका बहुत अच्छे से अच्छे एनआईटीज में एडमिशन हो जाता है। अच्छे से अच्छे एनआईटीज मतलब कौन से, आपने नाम सुने होंगे, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ये सारे बहुत ज्यादा अच्छे एनआईटीज है। इतने ज्यादा अच्छे एनआईटीज है कि वो आईआईटी से स्ट्रेट कम्पीट करते हैं। तो ये मेंस के स्कोर के ऊपर विदाउट एडवांस का स्कोर आपका एनआईटीज में आराम से एडमिशन हो जाता है। और इस स्कोर के रेंज में आपका जो कंपटीशन रहता है वो आपके आगे 30,000 ही बच्चे रहते हैं जो एक्चुअल में एडवांस के एग्जाम देने वाले होते हैं। और जो बच्चे, जो लास्ट वाला स्लैब है 250 से 300, ये बच्चे डेफिनेटली कहा जाएंगे, आईआईटी। आईआईटी में जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर 200 to 250 और 150 to 200, ये बच्चे आईआईटी में नहीं जाते क्या? डिपेंड करता है। जो 150 से 250 वाले बच्चे हैं ना, वो एडवांस के एग्जाम देंगे, फिर वो एडवांस के एग्जाम क्लियर करने के ऊपर है कि उनको कौन सा आईआईटी मिलेगा 23 में से। बट 250 to 300 वाले जो बच्चे होते हैं उनका एडवांस डेफिनेटली क्लियर होता है बहुत अच्छे एआईआर के साथ।
इसलिए मैंने लिखा है कि उनको अपर आईआईटीज मिल जाते हैं, बट उनको एडवांस की एग्जाम देनी पड़ती है। बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि वेयर डज अ 250 टू 300 वाला बच्चा इन द मेंस एग्जाम लाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितना मार्क्स निकालना मिनिमम नेसेसरी है। सो कितना मार्क्स एक सेफ स्कोर है 150, और कितना मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है 200 के ऊपर। तो ये पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में क्या रहता है, 300 ना, 290 मार्क्स चाहिए। बट 290 पूरे 15 लाख बच्चों में 10-12 बच्चों को ही मिलते हैं। ये भी समझने वाली बात है कि ये एग्जाम मार्क्स स्कोर करने वाली नहीं है, ये एग्जाम कंपटीशन को किल करने वाली है। सिंपल लॉजिक। तो इस एग्जाम में आप 270 290 ये दिमाग में रख के नहीं चल सकते। गुड स्कोर, बैड स्कोर, डिसेंट स्कोर, वेरी गुड स्कोर, ऐसे समझ रहे हैं। सो 100 के ऊपर निकाला, ठीक है, आप पार हो गए। 150 से 250 के बीच में है, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। 250 से 300 इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉमिस लैंड। तो यहाँ पे अगर आपको आईआईटी में जाना ही है, और टॉप आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई, ऐसे टॉप आईआईटीज में जाना है, तो आपको जेडब्ल्यू मेंस में 250 के आसपास मार्क्स निकालना नेसेसरी है। उसके बाद आप एडवांस देगा और उसके हिसाब से एडमिशन होगा। अगर आपको अच्छे से अच्छे एनआईटी में जाना है, तो आपका स्कोर 180 से 220 के बीच में होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे एनआईटी में चले जाओगे। ओके, अगर आपका स्कोर 100 से 180 के बीच में है, तो आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। या तो आप सीईटी देके अच्छे किसी कॉलेज में स्टेट लेवल चले जाओ, या फिर थोड़ा लोअर एनआईटीज में कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर अपर एनआईटीज में स्ट्रीम में कॉम्प्रोमाइज करो। मतलब कंप्यूटर चाहिए था और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, ईएसटीसी ले लिया, ऐसा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फिर करना पड़ता है। तो वहां पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट मैटर्स मोर, कि कॉलेज मैटर कर रहा है कि कोर्स या स्ट्रीम मैटर कर रहा है। सो वो एक बड़ा डिसीजन होता है। गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस सो वेल। जितना आपने बारीकी से इस टॉपिक को समझाया है, इससे डेफिनेटली व्यूवर्स को ये समझ आया होगा, स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा कि कैसे उन्हें अपना लाइफ का डिसीजन, कैसे अपनी करियर ट्रेजेक्टरी को और बेहतर बनाना है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं सर, ये जानने के लिए कि सक्सेस रेशियो कैसे काम करता है इंजीनियरिंग में। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ रहेगा कि मैंने सक्सेस रेशियो बताने के बाद आधे हाँ बच्चे तो ऐसा बोलेंगे, या फिर पेरेंट्स, स्पेशली आजकल के पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं जी। कि सर आप ऐसे एग्जाम देने बोल रहे हो मेरे बच्चे को, इसका सक्सेस रेशियो 4% है। 100 बच्चे भागेंगे, 4 बच्चे क्लियर करेंगे, अगर मेरा बच्चा बाकी 96 में आ गया तो वो तो डेटा था, वो समझना है रियल। तो ये जो 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मैंने सामने नंबर ऑफ सीट्स को 15 लाख लिख दी, वैसे तो 20 लाख है। सक्सेस रेशियो 100% हो गया ना, एडमिशन तो मिलने ही वाला है। जी। बट ऑब्वियसली क्वालिटी सीट में नहीं मिलेगा सबको। तो क्वालिटी सीट्स कितने हैं, 57,000। तो सक्सेस रेशियो आ गया 4%। अभी हमको ये समझना है, क्या आपके लिए वो सारे 15 लाख बच्चे कंपटीशन? तो दी आंसर इज नो। अब नो क्यों, वो मैं बताता हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरना है इसलिए भर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड है, और जो बचे हुए आधे हैं उसमें से आधे बच्चे गाइडेंस ही नहीं लेते या प्रिपरेशन ही नहीं करते, तो वो कैसे जेडब्ल्यू मेन से एडवांस क्लियर कर सकते हैं? आप समझ रहे हो? तो आधे बच्चे तो नेमसेक के लिए आए थे, जो बचे हुए आधे थे उसमें से आधों ने प्रिपेयर ही नहीं किया, और जो 25% हिस्सा बचा है उसमें कैलिबर भी तो मैटर करता है। सारे बच्चों का थोड़ी कैलिबर रहेगा जेडब्ल्यू मेंस एडवांस क्लियर करने का। तो ये कैलिबर कौन से बच्चों में रहेगा? ये कैलिबर उन बच्चों में रहेगा जिनको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है, जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स निकाल के टॉप कर रहे हैं एग्जाम्स। वो एक्चुअल कंपटीशन आपका है। आप बोलोगे सर इसका मतलब आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जिसको 10वीं में 90% मिलेगा वही आईआईटी से इंजीनियरिंग कर पाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसे भी बच्चे जो 80 तक के 10th में निकाल के आईआईटी चले जाते हैं। बट मैं आपको कंपटीशन का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देने के लिए
मैंने एक वो वर्ड यूज किया कि 10th स्टैंडर्ड में अगर अच्छे परसेंटेज है तो डेफिनेटली वो बच्चा कंपटीशन में लाई करेगा। तो ऐसे कितने बच्चे रहेंगे जो टॉपर रहेंगे, अच्छे पढ़ने वाले रहेंगे? वो पूरे 15 लाख नहीं है। पूरे 15 लाख में तो 7 से 8 लाख एग्जाम ऐसे ही दे रहे हैं, उसमें से भी 3 से 4 लाख प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे। जो बचे हुए 3 लाख 4 लाख बच्चे हैं उसमें से 1 ही लाख बच्चे जो आपका कंपटीशन है। अब ये मैं आपके बारे में क्यों बता पा रहा हूँ? बिकॉज आपने टाइम निकाल के ये वीडियो देखा, आप में अवेयरनेस है कि मुझे ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कब प्रिपेयर करूं, क्या प्रिपेयर करूं, और उसके पहले मेरे को ये समझना है कि इस एग्जाम से एवेन्यूज क्या ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब आप एक पढ़ाकू बच्चे हो तो आप इस 1 लाख में लाई करते हो। तो आपका कंपटीशन बेटा 15 लाख बच्चे नहीं है, आपका कंपटीशन 1 लाख बच्चे जो टॉपर्स है, जो शुरुआत से प्रिपेयर करेंगे। अभी देखो अच्छा लगेगा। क्वालिटी सीट 57,000 है, कंपटीशन 1 लाख है, तो सक्सेस रेशियो क्या हो गया? 57%। देखो सिंपल लॉजिक है। अगर आप ऐसे दौड़ रहे हो 15 लाख बच्चों के साथ तो आपको लगेगा हाय हाय कितना मुश्किल है, बट आपको पता है उसमें से 14 लाख बच्चे ऑटोमेटिकली पीछे जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आपको ये 1 लाख बच्चों पे फोकस करना है जो आपका कंपटीशन है, और वो कंपटीशन किल करके वो 57,000 सीट्स में जाना है। तो आपका सक्सेस रेशियो 57% हो गया। सो अभी आपको कैसे लग रहा है सर? मतलब आपको अगर मैं बताता कि एक 4% सक्सेस रेशियो वाली एग्जाम है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सर 50 to 60% सक्सेस रेशियो है, तो आप उस एग्जाम के बारे में क्या सोचोगे कि ये एग्जाम मुझे देनी है, या फिर ये एग्जाम के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन या कोचिंग की जरूरत है? क्योंकि अभी भी सक्सेस रेशियो 100% नहीं है ना, 57% है। तो जो बचा हुआ 50% है वो कैसे मिलेगा? देखिए, ये 50% तो आपको यहीं पे मिल गया कि आप वन ऑफ द टॉपर्स हो 10th स्टैंडर्ड में, या फिर अभी से जेडब्ल्यू मेन से एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बचा हुआ 50% के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है वो जानने के लिए मैं हमारे एक वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट से एक छोटा सा वीडियो शूट करके लाया हूँ, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और 10th के फिर हम समझते हैं। ठीक है? यस सर। आसपास से मेरा मेन इंटरेस्ट वाज कार्स एंड एनीथिंग व्हिच हैज व्हील्स एंड गोस अराउंड। तो मुझे मेनली मोटरस्पोर्ट इंजीनियरिंग करनी थी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। सो इफ वी गो फॉर मेन प्रीमियर कॉलेजेस आउटसाइड इंडिया, बट अगर सब कैलकुलेट करा जाए तो 1.5 सीआर पर ईयर आराम से जाता है। बेसिकली स्टडी बस में जिन बच्चों के साथ तुम पढ़ रहे थे उनके कुछ पहले से गोल्स सेट थे। हाँ, अभी मैं पेयर्स में आपको दो प्राइम एग्जांपल्स देता हूँ, एक विनय लून पांडे और एक सर्च। बोथ ऑफ देम आर इन आईआईटीज, बोथ ऑफ देम आर परस्यूइंग व्हाट दे ऑलवेज वांटेड। तो उनको देख के लगा कि मैं भी इंडिया से बन तो सकता ही हूँ। जेईई मेंस के मार्क्स विल हेल्प यू रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर। अमित सर ने हमें बोर्ड से ज्यादा एक्सप्लेन किया कि वेक्टर्स में क्या है। उन्होंने क्लास में फैन 3 कॉर्नर्स पॉइंट करके बताया था पैरेलल पाइप कैसे चलता है। हम लोग सम्स भी वैसे सॉल्व करते थे, इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग। द मेन रीजन व्हाई आई स्कोर्ड गुड इन फर्स्ट अटेम्प्ट was because I had overly aggressive time schedules and overly aggressive exam giving patterns. तो मेरा जैसे 29th को पेपर खत्म हो उसके बाद बोर्ड्स, मैंने बोर्ड्स को बहुत लाइट में लिया था एंड उस चक्कर में मेरा पूरा फ्लो लाइट हो गया। अगर मुझे आगे जाके इतना अच्छा करना है तो क्या मैं अभी इतना कर सकता? आई एग्री 10th भी किसी की उतनी इच्छा नहीं होती होगी, बट एक बार कभी ट्राई करके देखो, मजा आया तो सेट हो, वरना फिर छोटा वो। दिस इज अवर वन ऑफ द टॉपर्स। तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बचे हुए 50% आप गाइडेंस से ही ला सकते हो और कोचिंग से ही ला सकते हो, या फिर आपका जो पीयर्स रहेगा जिनके साथ आप पढ़ते हो वो मोटिवेटेड और फोकस्ड होने चाहिए। तो अभी जो बच्चा था आर्यन, उसने जो जेडब्ल्यू मेंस अटेम्प्ट 1 में बहुत अच्छा स्कोर लाया, वो क्यों ला पाया? तो वो वही बता रहा था कि मेरे जो पीयर्स थे, मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे, वो बहुत ज्यादा फोकस थे, जो आपको सामने रिजल्ट में भी दिखेंगे, या फिर मेरे पीछे भी एक रिजल्ट दिख रहा रहेगा, ये भी उसी का फ्रेंड है। तो ये सारे पीयर्स जो साथ में कोचिंग स्टडी बस में जो पढ़ते थे, वो एक ग्रुप ऑफ मोटिवेटेड डेडिकेटेड पीपल जब
टुगेदर आते हैं एक जगह पे, तो जो आउटपुट निकलता है वो अलग होता है। वो आउटपुट एज अ टीम वर्क निकलता है। तो वो जो आउटपुट है वो आपको बचा हुआ 50% जो दे रहा है, वो आपको कौन दे रहा है फिर? एक तो आपका गाइडेंस, आप कहाँ से ले रहे हो। दूसरा, आप किन के साथ पढ़ रहे हो, आपके पीयर्स। तीसरा, आप कितने मोटिवेटेड हो खुद, क्योंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो तो। और ऑब्वियसली आप अपना एक वैल्यूएबल टाइम ऑफ एन आवर निकाल के ये वीडियो डिटेल में एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब आप मोटिवेटेड हो, तो पहला टिक तो हो गया। दूसरा और तीसरा टिक करने की जरूरत है। दूसरा टिक क्या, कि आप किन बच्चों के साथ पढ़ोगे। तीसरा टिक क्या, कि आप गाइडेंस कहाँ लोगे। जैसे आपके सामने जो 4 बच्चे दिख रहे हैं, तो इनका ये जो ग्रुप था स्टडी बस में, आप सारों के परसेंटाइल देखोगे वो बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से। या फिर मेरे पीछे जो बच्चा है, या फिर जो अभी वीडियो में जो बच्चा था, तो इन सारे बच्चों ने वो जो रिमेनिंग 50% था, वो थ्रू कोचिंग, थ्रू गाइडेंस कवर कर लिया, और फिर उनका सक्सेस रेशियो 100% हो गया। नाउ मोस्ट ऑफ देम had only one single goal, that is to go into IIT, and almost all of them cleared that goal. जैसे आपके सामने अगर परसेंटाइल, अगर ये जो दिख रहे हैं, वो परसेंटाइल क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये सारे बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हो गया। अद्वैत पटवर्धन आईआईटी बॉम्बे, आयुष पाटिल आईआईटी खड़गपुर, ईशान फंसे आईआईटी खड़गपुर, उत्कर्ष आईआईटी मद्रास। सो दैट इज द आइडिया, कि गोल क्लियर होना और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेना, जिसके थ्रू इन्होंने ये रिजल्ट्स अचीव किए। अब एक और चीज है जो आपका 50% कंफर्म कर सकता है रिमेन। वो क्या है? तो देखिए, जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम डिफिकल्ट तो है, एडवांस के एग्जाम डिफिकल्टी है, एक बार करने से शायद ना हो। तो आपके सामने मैंने एक पंचसूत्री रखी है, जो ये कंफर्म करता है कि आपका जो अभी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, वो 100% क्लियर होने के बाद ही आप सेकेंड टॉपिक पे जाओगे। तो सिंपल लॉजिक, सिंपल फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ। आपको एक टॉपिक सिखाया गया, अब ये एग्जाम थियोरी का तो है नहीं कि सिखाया, सुन लिया, घर गए, खत्म। नहीं, आपको उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपको दिख रहा है कि प्रैक्टिस सेशन ऑफ डीपीपीस। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो सिखाया है उसके ऊपर बेस्ड आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो आप स्ट्रेट अवे क्या करते हो, टेस्ट देने जाते हो, ठीक है, और उसका डाउट सॉल्विंग करते हो। डाउट सॉल्विंग करके, टेस्ट दे के, उसका पेपर डिस्कशन करके आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो। अगर वो खराब आया तो वो आप चैप्टर वापस पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, एंड दिस स्टफ गोज ऑन टिल द एंड, जब तक आपका वो चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे शायद 1 से 2, 2 से 3 आइट्रेशन भी एक टॉपिक में कभी कभी लग जाते हैं जो ज्यादा वीक हो। मतलब आपका प्रैक्टिस सेशन आपने सॉल्व किए एमसीक्यूज, आपको प्रैक्टिस सेशन आ गया, तो उसमें डाउट आए तो आपने डाउट क्लियर करवाया और फिर टेस्ट दिया। तो दैट फ्लो हैज टू बी फॉलो। तो इस तरीके से इस पंचसूत्री का यूज करके आप कंटिन्यूएशन में एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो शायद 1 आइट्रेशन में ना हो पाए, बट उसके लिए आपको 1 से 2, 2 से 3 आइट्रेशन लग सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी फॉलो, एंड जो भी अभी रिजल्ट दिखा है वो बच्चों ने भी सेम पंचसूत्री फॉलो किया है। बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर सॉल्विंग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दैट इज एमसीक्यूज, नॉट थियरी। ये एग्जाम थियरी का बिल्कुल भी नहीं। ये पंचसूत्री अगर आप फॉलो करते हो तो रिमेनिंग 50% आप डेफिनेटली अचीव कर लो। परफेक्ट। तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड एवरीवन, आपको मिलेगा एक स्टडी बस करियर किट हमारी तरफ से, और साथ ही साथ टू अवेल स्कॉलरशिप यू हैव टू कम फॉर एन ऑफलाइन टेस्ट हमारे सेंटर पर। हमारे सेंटर्स लोकेटेड है थाने, नवी मुंबई और कल्याण, इन रीजन्स में। हमारे अभी फिलहाल 9 सेंटर्स है, वो कौन से है, कहाँ लोकेटेड है, वो मैं आपके साथ एक दो मिनट में शेयर करूंगा। एंड यस, इन केस आपको अगर कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, कैसे आप इसे और बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अमोल सर से अब यहाँ पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। सो आगे बढ़ते हैं।
Yes. अमोल सर, आप थोड़ा बताएंगे इसके ये बारे में? ये था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वेरियस सेंटर्स। दिस वन इज इन डोंबिवली। तो अगर आप डोंबिवली के आसपास रहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर में जाके विजिट कर सकते हैं फॉर करियर काउंसलिंग। ये है इन करवा थाने के आसपास। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स मानपाड़ा, इट इज नियर द घोड़बंदर रोड। और ये जहाँ पे हम अभी फिलहाल बैठे हैं, थाना सेंटर, वहाँ पे आप ऑफलाइन आ सकते हैं करियर काउंसलिंग के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए। तो ये हो गया थाना कड़वा वो रीजन। और ये अभी नवी मुंबई रीजन में आपने देखा वाशी और नेहरू, ये मेजर सेंटर है नवी मुंबई मुंबई साइड। एंड दिस वन मोर सेंटर विच इज इन खारघर। ऐसे 3 नवी मुंबई में सेंटर है। तो इसके आसपास आप कहीं पे भी रहेंगे तो आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। एक तो करियर काउंसलिंग के लिए या तो डाउट सॉल्विंग के लिए, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में अभी कुछ डाउट्स है तो। या फिर हमारा एक टेस्ट भी होता है जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं। इससे हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप जेडब्ल्यू मेंस कितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर प्रिपेयर करने के लिए और कौन सी चीजों की आपको जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप स्टडी बस के इन वेरियस सेंटर्स में कर सकते हो जो हमने अभी दिखाए। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से आप एक सेंटर फिक्स कर लेना और वहां पे ऑफलाइन यू कैन गो एनी टाइम। अभी हम थोड़ी देर में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी फ्लैश कर देंगे जिसको कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यू कैन कम फॉर दैट फ्री ऑफलाइन एमसीक्यू एप्टीट्यूड टेस्ट एनी टाइम फ्रॉम टुडे टुवर्ड्स 30th अक्टूबर। एंड आप अपना करियर पाथ डिसाइड करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। परफेक्ट। सो जैसे सर ने बताया, हमारे काफी सारे सेंटर्स है स्टडी बस के, आप वहां पर एमसीक्यू टेस्ट के लिए आ सकते हैं। इट इज अ फ्री एमसीक्यू टेस्ट, और इस टेस्ट से आपको भी डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे आप अपने करियर में अभी तक कर चुके हैं, कैसे आपकी अभी तक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है, और इससे आप आगे किस तरह आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी करियर मैपिंग करने में काउंसलर्स, एक्सपर्ट्स आपको मदद करेंगे। सो टेस्ट आज से, लाइक संडे से लेकर वेनसडे 30th अक्टूबर तक, आप कभी भी आकर हमारे किसी भी सेंटर में दे सकते हैं। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगी, और इसके बाद आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो आप डेफिनेटली इसे चेक कीजिए। एंड Q&A स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर किसी को कोई सवाल रह गया है जो कवर करना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे मुताबिक सर हमने बहुत से सवाल ड्यूरिंग द सेशन ही ले लिए थे, तो अभी कोई ज्यादा सवाल तो नहीं। एक सवाल जो यस। मुझे आपसे पूछना था सर, लाइक कैंडिडेट्स के डिस्कशन से निकल आया था कि जेई में समझिए अगर कोई नहीं कर पाया क्रैक जेई एग्जाम को, तो क्या वो टेक्निकल करियर बना सकता है? ये सवाल मुझे आपसे पूछना था। ओके, सो लेट अस से आपका जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम आपने ट्राई करने के बाद भी क्रैक नहीं हुआ, जी। तो क्या आप टेक्निकल करियर बना सकते हैं क्या? सो द आंसर इज डेफिनेटली यस। तो जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसके लिए आप अब बहुत हार्ड लेवल टॉपिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो जेडब्ल्यू मेंस उसमें सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। बट ये पोर्शन जब आप पढ़ते हो तो उसके अलॉन्ग विथ है ना और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। तो पहली तो सीईटी हो गई जो बहुत ज्यादा इजी है। जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे आप वो दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद बिटसैट का एक अलग से एग्जाम होता है, बिट्स पिलानी कॉलेजेस का, उनके कैंपसेस का। फिर एनएमआईएमएस का अलग से एग्जाम होता है। फिर वीआईटी का अलग से एग्जाम होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए जेडब्ल्यू मेंस का जो आप प्रिपरेशन करोगे ना वो यूजफुल होता है। तो जेडब्ल्यू मेंस नहीं हुआ बट इनमें से कोई ना कोई एग्जाम आपका अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक हो जाता है अगर आप डिलीजेंटली 2 साल जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो जेडब्ल्यू मेंस क्लियर ना होना इज नॉट अ क्लियर इंडिकेशन कि आप टेक्निकल फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। आप बाकी एग्जाम्स भी अलॉन्ग विद दे सकते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं। उनमें से कोई ना कोई एग्जाम आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दे देती है। सो इट डज नॉट टेल यू कि मेंस नहीं हुआ चलो हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हो थ्रू अदर एग्जाम्स। नाउ
definitely I wouldn't suggest straight away private courses as such, because आप जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बाकी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स निकाल ही लेते हो और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है. हाँ, बट इफ दैट ऑल्सो फेल्स देन ऑल्सो देर आर मेनी ऑप्शंस, बट वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जिसके लिए करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. तो इसी के लिए हमने जो अभी स्लाइड फ्लैश किया था ना कि आप करियर काउंसलिंग के लिए एमसीक्यू एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आ सकते हो, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपका अंडरस्टैंडिंग गेज करती है कि आप टेक्निकल चीजों में कितने माहिर हो, टेक्निकल चीजों में करियर कर सकते हो क्या, वो बताती है. और उसके लिए और क्या एडिशनल करना पड़ेगा वो बताती है. और उसके अलॉन्ग विथ ही करियर काउंसलिंग भी होगा आपका अलॉन्ग विद द स्कोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू टेस्ट, जो आपको ये बताएगा कि ये नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं. बट वो स्टूडेंट वाइज इंडिविजुअल रहता है, ऐसे जनरल नहीं कर सकते वो. बट यस, जेडब्ल्यू टू सम अप विद द आंसर, जेडब्ल्यू मीन्स क्रैक न होना इज नॉट अ क्लियर इंडिकेशन कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते. देखो कितने सारे इंजीनियर है, सारों का जेडब्ल्यू मेंस क्लियर नहीं हुआ है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू बी नोटेड. इफ नॉट दिस देन देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर. एंड सारे सवाल जवाब हमने ऑलरेडी कर लिए थे. तो I would like to thank all of you for being a lovely audience and asking the questions in between wherever needed. And बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि if you want to get expert guidance, definitely visit StudyBuzz centers. StudyBuzz has 9 centers currently, and they are expanding more. So currently there are 9 centers, and these are distributed in the regions of Thane, Navi Mumbai, and Kalyan. So we will pass you all the details, and you will receive all the study kit and whatever messages we said via WhatsApp and call. So stay tuned. If in case you still feel you have any doubts or queries, feel free to get in touch with us on any of these numbers, like contact number or email ID, or you can also visit our website. Sir, you would like to say something at this point? ओके, तो फिलहाल तो जो 10वीं के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अदर कुछ 11वीं के बच्चे, तो 10वीं के बच्चों के लिए मेरा सिंपल आइडिया ये रहेगा कि अभी 10th के टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज वही बाद में काम आने वाला है. और 11वीं के बच्चे को ये सजेशन रहेगा कि आप मिडवे आ गए हैं, आपका पोर्शन शायद आधा हुआ रहेगा, शायद कंप्लीट हुआ रहेगा, वट एवर स्टेज यू आर इन. बट जेडब्ल्यू मेंस एक 2 years लॉन्ग एग्जाम है जिसके बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो आपको हैंडल करते हुए आगे जाना है. ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन्स नेसेसरीली आएंगे, सबके सारे टॉपिक्स अच्छे नहीं होते, तो वो हैंडल करते करते आगे जाना है. जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो टुवर्ड्स द एंड अच्छा हो ही जाता है. सो डोंट लूज होप इज ऑल आई कैन से, एंड कीप प्रिपेयरिंग. Got it. Thank you so much, sir. So, we hope to see you at StudyBus centers for this aptitude test and expert counseling. And definitely from our side, as we have assured you, you will receive very good gifts, very good scholarships. So, get set and milte hai. All the best for your 10th standard examinations, whoever is attempting for 10th standard exams right now. And come with your doubts, come with your queries for this aptitude test. We'll be happy to help. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, sir.